حضرات، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو علم ہے کہ میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ انسانی حقوق کے حوالے سے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ یہ بلوچستان اور پاکستان بھر میں انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ لاپتہ افراد کی فہرست میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریاست آج تک سنجیدہ نہیں ہے۔ معزز صحافی حضرات، میری والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی ریاستی خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری گمشدگی کو آج 15 سال کا طویل عرصہ مکمل ہو گئے ہیں۔ میرے والد صاحب بلوچستان کی دور افتادہ اور پسماندہ علاقہ اورناچ گزدار میں سرکاری ڈیوٹی پہ تعینات تھے۔ اسے دوران ڈیوٹی سادہ کپڑوں میں ملبوس خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے غیر قانونی حراست میں لینے کے بعد جبری لاپتہ کر دیا۔ 15 سال گزرنے کے باوجود آج تک ہمیں اس کی کوئی خیر خبر نہیں ملی ہے کہ میرے والد جہاں سے اٹھائے گئے قریب میں پولیس اسٹیشن واقع ہے، ایف سی کے کیمپ بھی موجود تھے۔ میرے والد خود ایک سرکاری ملازم ہیں۔ عدلیہ اور ریاستی اداروں پر فرض عائد ہوتی تھی کہ میرے والد کی بازیابی میں کردار ادا کرتے، لیکن بجائے اس کی بازیابی میں مثبت کردار ادا کر کے الٹا ہمیں مسلسل تنگ کیا جا رہا ہے۔ والد کی بازیابی کے سلسلے میں ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک پیش ہوئے ہیں۔ 2016 میں سپریم کورٹ نے ہمارے والد کی گمشدگی کے کیس کے خارج کرتے ہوئے کہا کہ وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں یا فراری کیمپوں میں ہیں، لیکن یہ بیان ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ سپریم کورٹ جیسے ملکی ادارے کو یہ بات ثابت کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ملکی اداروں کا احترام کرتے ہوئے کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوتے رہے ہیں۔ کمیشن ہمیں ہمیشہ الٹے سیدھے سوالات سے ہماری تصدیق کرتی جاتی رہی ہے اور ہمیں ہراساں کیا گیا ہے۔ ہمیں اس طرح کی اذیت دی گئی ہے کہ ہم اپنے والد کی بازیابی کے لیے جدوجہد سے دستبردار ہو جائیں۔ معزز صحافی حضرات اور انسانی حقوق کے علم بردار، ہم اس ملک کے ایک پرم اور جمہوریت پسند شہری ہونے کے ناطے اس ملک کے تمام اداروں کے در کھٹکھٹائے ہیں۔ ملک کے عدالتی نظام پہ بھروسہ رکھتے ہوئے عدالتی قائم کر کمیشن میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں، احتجاج کے تمام طریقہ کار آزمائے ہیں۔ ان 15 سالوں میں میرے والد کی جدائی سے ہماری پوری فیملی متاثر ہوئی ہے۔ ہمارے خاندان ایک شدید غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہے۔ ڈاکٹر دین جان کے والد، بہن اور بھائی انہی 15 سالوں میں زندگی کی باقی ہار گئے ہیں۔ زندگی کے آخری سانس تک یہ آس لگائے رکھے تھے کہ اپنے گمشدہ عزیز کو دیکھ پائیں گے۔ درد کے ان لمحات کو میں شاید لفظوں میں نہ بیان کر سکوں۔ مجھے اور میرے بہن بھائی کو ریاست یہ باور قرار دے کہ ہم خود کو اب یقین تصور کریں یا ہم ایک زندہ باپ کے اولاد ہیں، ہمیں اس بات کی باور کرائے۔ ہم ایک دن وہ ہماری زندگی میں کبھی واپس لوٹیں گے یا نہیں، میری والدہ کو کم از کم یہ بتایا جائے کہ وہ اب تک میرے والد ڈاکٹر دین محمد کی شریک حیات ہیں یا وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ ہم اس ریاست سے ان سوالات کا جواب مانگنے کا حق رکھتے ہیں۔ ان 15 سالوں میں ہم 3 بار اسلام آباد لانگ مارچ کر چکے ہیں، 3 دفعہ اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں محض صرف تسلیاں دی گئی ہیں، جبکہ آخری دفعہ کو ریاستی ادارے کا ذمہ دار یا کوئی حکومتی بندہ ہمیں جھوٹی تسلیاں تک دینے نہیں آیا، بلکہ اسلام آباد پہنچنے پہ ہمارا استقبال لاٹھیوں اور ڈنڈے پانی برسا کر کیا گیا۔ ہمیں جیلوں میں ڈال کر ہمیں اسلام آباد بدر کرنے کی تیاری کی گئی، لیکن ہم نے دیگر لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ مل کر اپنا پرم دھرنا جاری رکھا۔ ہم نے کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ اس کے باوجود جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں مختلف حرکوں سے تنگ کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ ٹرولز کیا جاتا ہے، ہمارے پرم جدوجہد کو غلط رنگ متنازع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود کہ اس مسئلے کو کوئی قانونی طور پر ڈیل کیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ اس ریاست سے کہ میرے والد صاحب یہ کون سا ایسا بڑا الزام ان پر عائد کیا گیا جسے ملک کی عدالتوں تک پیش نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے مجرموں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ ریاست کو اطلاع جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے والد کو جبری گمشدگی کے حوالے سے ہمیں جواب دہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر دین محمد زندہ ہیں یا دوران تحویل
सियासी तशद्दुद से शहीद भी किए गए हैं, तब भी रियासत को इस इखलाकी जुर्रत और हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए हमें बताना चाहिए, ये जानना हमारा बुनियादी हक है। 15 सालों में मुसलसल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कमीशन में पेश होने के बाद सिर्फ नाउमीदी मिली है, लेकिन हम अपने जद्दोजहद से मायूस नहीं होंगे। हम बैनुल-अक़वामी इंसाफ और इंसानी हकूक़ के इदारों तक अपनी फरियाद लेकर जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन ज़रूर उन तमाम इदारों और किरदारों को जवाब करेंगे जो मेरे वालिद की जबरी गुमशुदगी में शरीक जुर्म रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात और इंसानियत के अलमबरदार, जबरी गुमशुदगियों के इस संगीन सिलसिले को रोकने और गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के इस जद्दोजहद को हम अकेले नहीं लड़ सकते। इसमें हमें आप सहाफ़ी बरादरी, इंसानी हकूक़ के कारकुनान, सियासी और समाजी कारकुनान समेत हर तबके और फिक्र के लोगों की साथ देने की ज़रूरत है। मैं ज़िंदगी के हर शबे से ताल्लुक़ रखने वाले, दर्द दिल रखने वाले लोगों से अपील करती हूँ कि आइए इस जद्दोजहद में हमारा साथ दें। मेरे वालिद की जबरी गुमशुदगी को आज 15 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये 15 साल में हमने पल पल अज़ियतों के साथ गुजारे हैं। हमने अपनी बचपन इन सड़कों पर गुजारी है। हम अपने आबाई इलाके से दरबदर किए जा चुके हैं। एक उम्मीद लगाए रखे हैं कि एक ना एक दिन मेरे वालिद ज़रूर वापस लौटेंगे, लेकिन जिस तरह साल बढ़ते जा रहे हैं हमारे खदशात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। हम एक दफ़ा फिर इस रियासत से एक सादा सा जवाब चाहते हैं कि इन्हें हमें बताना पड़ेगा कि मेरे वालिद डॉक्टर मोहम्मद बलूच जिंदा हैं या इन्हें शहीद किया गया है। जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ ये जद्दोजहद हम या लापता अफराद के लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते हैं। हमें आप तमाम लोगों की ज़रूरत है। ये इंसानी बका का मामला है। आइए बका और ज़िंदगी के जीने की अच्छी खातिर जद्दोजहद में हमारा साथ दें। शुक्रिया। हम कह रहे हैं कि उसकी लाश हमें लौटा दें, इससे आसान मुतालबा क्या हो सकता है? इससे मज़ीद आसान और सादा अल्फाज में मुतालबा क्या हो सकता है? लेकिन रियासत बढ़ी हुई है अपनी मनमानियों पर। रियासत खुद को मजबूत दिखाने की शय पे खड़ी है। ये इस तरह नहीं चलेगी। रियासत इस तरह नहीं चलती है। रियासत कानून जबर और ताकत पे उस पर नहीं चलती है। उसमें फिर सिर्फ जब आप जबर का कानून नाइज करते हैं तो वहाँ की रियासतों में सिर्फ और सिर्फ या कठपुतलियाँ बनती हैं या बावली बनते हैं। वहाँ पर आप आम समाज पैदा नहीं कर सकते हैं। और आज इस रियासत में यही बने हैं। कुछ वही लोग हैं जो रियासत की कठपुतली बन चुके हैं और कुछ हम जैसे लोग जो इस रियासत के निज़ाम से, जुल्म और जबर के निज़ाम से इनकारी है तो हमें दहशतगर्द करार दिया जाता है। क्यों हम दहशतगर्द हैं? आप साबित करें, मुझे छोड़ें। मुझे ये कहा जाता है कि मैं एक दहशतगर्द की बेटी हूँ। किसने ये साबित किया कि मैं एक दहशतगर्द की बेटी हूँ? कहाँ है आपकी अदालतें? किसने? कौन सा बड़ा जुर्म किया है मेरे अबू ने? मेरे अबू ने कौन सा इतना बड़ा जुर्म किया कि जिसकी सजा आपके आईन और कानून में भी नहीं है? आप बेटों की तरह, आप डाकुओं की तरह रात के अंधेरे में जाकर लोगों के घरों में, सरकारी अस्पतालों के अंदर से लोगों को जबरी तौर पर गायब करते हैं। आप हमें दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन दहशतगर्द तो आप खुद हैं। आपके वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इदारे जो बार बार इस रियासत के आईन और कानून की पाबंदी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको अदालत के कटघरे में नहीं लाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, क्योंकि आज हमें लावारिस करार दिया गया है। इस वजह से आप जो कहेंगे हम वो मानेंगे। आज बलूचिस्तान में जो हालात ने जन्म लिया है, आज बलूचिस्तान के हर एक घर में लोग जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ उठे हैं। अब चाहे बस्ती में देखें, अब चाहे तुर्बत और बवादर में जाए देखें, अब कोटा में जाए देखें, हर घर से लोग उठ रहे हैं। ये आपकी पैदा करता हालात है। फिर आप कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं। ये दहशतगर्दी है। अपने बुनियादी हकूक़ का मुतालबा करना एक दहशतगर्दी है। आप जो है हमारे लोगों को आए चोरों और डकैतों की तरह उठाकर गायब करें सालों साल, फिर आप ये तसव्वुर करते हैं कि उनके बारे में भेजे था। आप आए और अपने जबर के इस तसल्सल को जारी रखें और फिर ये तवक्को करें कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। इस तरह नहीं होता। नफरत होती है हमें, इस निज़ाम से हमें नफरत है। हम ये खुलकर कहते हैं कि हमें नफरत है इस सिस्टम से, जिस सिस्टम ने हमें इतना मजबूर किया है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारी जिंदगी से बेशतर दिन इन सड़कों पर गुजरे हैं। हम थक गए ये कहते कहते कि हमें इस मुल्क का शहरी तसव्वुर करें। हम थक गए खुद को कि
आज़ादी के लिए। आप कहें अभी दहशतगर्द कहें, आपको जो कहना है आप कहें, आपको इजाजत है, आपको खुली छूट है। आज तक आप यही करते आए हैं। इसके बदले में आप सिर्फ हमें मार सकते हैं, किसी गाड़ी में एक्सीडेंट कर सकते हैं, किसी गाड़ी में जहर मिला सकते हैं, यही तो आपकी औकात है। इससे बेहतर आप क्या कर सकते हैं? पेमेंट टॉक्स तो आपकी बस की बात ही नहीं है, बात तो आप करना ही नहीं चाहते, हालात को बेहतर करने की तो आपकी कोशिश ही नहीं है। तो आए या तो हमें मारे या फिर हमारी मुजाहिमत को सहे। ये तरीका किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। ये रवैया कोई भी सहने के लिए नहीं है तैयार कि आप सालों साल लोगों की जिंदगियों को उजाड़ दें। आज हमारे लिए जीने के लिए सिर्फ हमारे सांसों के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज आप हमें किस बात से डराएंगे, किस बात को खौफ दिलाएंगे? आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज हम एक ऐसे बीच चौराहे पर खड़े हैं कि हमारे पास सोने के लिए भी कुछ नहीं है। चंद सांसें हैं, आप आए वो भी ले लें, लेकिन ये तरीका, ये जबर का निजाम जो आप लेकर आए हैं, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हम इसके खिलाफ मुजाहिमत करेंगे, हमने इस पे किया है। और ये बात मैं आज के इस स्टेज पे कहूँगी कि हम अपने वालिद की बाजियाबी के लिए मैं हर उस हद तक जाऊँगी, हर उस दरवाजे पे जाऊँगी, हर उस अदारे तक पहुँचूंगी जहाँ पर मुझे लगेगा। और इस पे अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो ठीक है, आप समझे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, आपको जो समझना है आप समझे। लेकिन हम एक्सपोज करेंगे कि आपने किस तरीके से हमारी मासूम बहन की जिंदगी को बर्बाद किया है, आपने किस तरह से मेरी माँ को एक ऐसी जिंदगी में धकेला है जहाँ पर वो खुद नहीं जानती कि उसका स्टेटस क्या है। हम बताएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे। आज आप हमारी बात ना सुने, आप मीडिया के कैमरे बंद करें हमारे सामने, आप अपने साथियों के मुंह पे टेप लगाएं, आपको जो करना है आप करें, लेकिन हम बताएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे। हर जगह पे हमें जहाँ कहीं भी हमारी आवाज सुनी जाएगी, हम जाके बताएंगे कि किस तरह एक सरकारी मुलाजिम को दौरानी ड्यूटी अस्पताल के अंदर से उठाकर लापता किया गया, किस तरीके से हमारे छोटे छोटे बच्चों को जबरी तौर पर लापता किया जाता है, किस तरीके से हमारे नौजवान लड़के जब ईद उन पर अपने घरों में जाकर ईद मनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ से उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाता है, किस तरह हमारी माएँ रोडों पर ससक कर बेहोश होती हैं, किस तरह नवा नाको मयार जैसे पेड़ पर शख्स के 50 सेंटीग्रेड की गर्मी में एहतिजाज पे बैठे हुए हैं। अब बताएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे, इसके लिए आप हमें जो कहेंगे आप हमें कह दें। बहुत हो गया इस रियासत का, अब हमारे लिए खत्म है, अब हमारे बस की बाहर है, अब मजीद खत्म हो गया ये शहरियत का, ये फलानियत का, ये भमानियत का ये दावा, अब हमारे बस से बाहर है।